18 तारीख को ଆଉ 18 ତାରିଖ एक प्रभु की दासी का कॉल हमारे पास आता है। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସୀଙ୍କର ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା उन्होंने कहा ଆଉ ସେ କହିଲେ रूबी प्रभु पास्टर को बोलो उनको बहुत महिमा के साथ प्रभु लेना चाह रहा है। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କୁହ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। मैं रोना शुरू कर दी, ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो पाया। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। उन्होंने मेरे तरफ हंस के बोला ଆଉ ସେ ହସିକି କହିଲେ दुखी मत हो, दुखी मत हो, प्रभु को महिमा करना। ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା କରିବା। हमें नहीं पता था कि शायद ये प्रभु का योजना था। ଆଉ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। सारी बातों में प्रभु ने मदद किया और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मैं संक्षिप्त में करना चाहूँगी। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। चिकित्सा के दरमियान जब मुझसे बातें करते थे ଆଉ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ उनको लगता था कि मैं बहुत चिंतित हूँ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଟୁ। मैं बहुत चिंतित थी, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି लेकिन मैं उनके सामने अपने आप को नहीं दिखाती थी। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମନାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ନିଜକୁ लेकिन ଦେଖାଉନଥିଲି, उनको सब कुछ पता था। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଥିଲା। उन्होंने एक ही बात बोलते थे, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, प्रभु को धन्यवाद करना, ପ୍ରଭୁ को धन्यवाद करना, कभी भी तुम दुखी मत होना, ଆଉ କେବେ ବି ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ। प्रभु हमारे साथ में है, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। जो भी होगा भलाई के लिए होगा। ଆଉ ଯାହା ବି ହେବ ସେ ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ହେବ। मैंने कहा आप ठीक हो जाएंगे ना? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଠିକ ତମେ ଠିକ ହେଇଯିବ ନା? हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, उन्होंने कहा मुझसे। ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଠିକ ହେଇଯିବି। सेकेंड टाइम कीमो में जाने के समय में ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କିମୋ ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ उन्होंने कहा मैं रूबी को लेके जाऊंगा। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯିବା ସମୟ ରୁବିକୁ ନେଇକି ଯିବି କହିଲେ। मैंने कहा मैं बेटी को लेके अक्कू को भी लेके जाऊंगी। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବି। उन्होंने कहा कि नहीं बच्चों को रहने दो, मैं सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। ଆଉ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ଆମେ କେବଳ 2 ଜଣ ଯିବା। 29 अक्टूबर को मैंने हम लोग यहाँ से गए चेन्नई। ଆଉ 29 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମେ ରାୟପୁରରେ ଆମେ ଚେନ୍ନାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲୁ। वहाँ जाने के बाद ଆଉ ସେଠାରେ गला ପରେ वहाँ पता चला कि वो लोग 1 वीक पहले हमें बुला लिए हैं। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, 1 वीक हम यहाँ और स्टे करेंगे। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆମେ ଏଠି ରହିବା। उस बीच में हमारे लिए इतना टफ टाइम था। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କଠିନ ସମୟ ଥିଲା। हमारे बच्चों को छोड़ के कभी भी हम अकेले नहीं गए थे। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ଆମେ ଏକଲା ଆମେ ବାହାରକୁ କେବେ ଯାଇନଥିଲୁ। हमारी बेटी रात रात मुझे वीडियो कॉल से मुझे से बातें करके मुझे देखती रहती थी। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ରାତି ରାତି ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। मैं रह नहीं पा रही थी वहाँ। ମୁଁ ସେଟା ରହିପାରୁନଥିଲି। इधर इनकी हालत को देख करके मैं परेशान, इधर बच्चों को देख के परेशान। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ୟାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୁଁ ପରିଶାନ, ଆଉ ମୋ ଝିଅର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶାନ ହେଉଥିଲି। मैं रात रात घुटने टेक के प्रार्थना करती थी, ଆଉ ରାତି ରାତି ମୁଁ କେବଳ ଆଣ୍ଠୁ ହୋଇ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, प्रभु मुझे हिम्मत दीजिए, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ ସାହସ ଦିଅ, मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए इन परिस्थितियों का सामना करने के। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୋତେ ସମ୍ମୁଖ କରିବା ପାଇଁ। मुझे कुछ पता नहीं था कि प्रभु क्या करने जा रहा, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା କି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। क्योंकि बहुत कम हम लोग दोनों साथ में समय बिताया करते थे मिनिस्ट्री और घर की जिम्मेदारियों के कारण। କାହିଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଆମମାନେ ସମୟ ବିତାଇ ପାରୁଥିଲୁ, କାରଣ ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ବାହାରକୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ। घर में रहने के समय भी ଆଉ ଘରେ ରହିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ कुछ ना कुछ वो हमेशा बुक पढ़ना या कुछ नई नई पुस्तकों को पढ़ना या कुछ चीज हमेशा वो देखते रहते थे। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ବହି ପଢ଼ିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ସେ ପଢ଼ିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ କେବଳ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। एक मिनट का टाइम भी उन्होंने कभी भी वैसी वेस्ट नहीं जाने दिया। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ସେ ବିତାଉ ନଥିଲେ। मैंने घर में रह करके महसूस किया कि घर में रहने कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि घर में रहने के और रात कभी भी किसी का भी फोन आने से उठ के प्रार्थना करते थे। ଆଉ ସେ ଘରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାତି କେତେ ବି ରାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଯଦି ଫୋନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ରାତିରେ ଉଠି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। कितने बार मैं कहती थी कि कम से कम एक टाइम रखिए, आप उस टाइम तक ही प्रेयर कीजिए। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି, ଅନେକ ଥର କହୁଥିଲି କି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। उन्होंने कहा
ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ बीमारी कष्ट का कोई टाइम नहीं होता है, ଆଉ ବିମାରୀ ଆଉ କଷ୍ଟର ପାଇଁ ତ କିଛି ସମୟ ନାହିଁ ନା। हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने भेजा है। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। मुझे स्वास्थ्य से बढ़ करके उनके लिए सेवा करना है। ଆଉ ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବାର ଅଛି। वहाँ से एक हफ्ता जो हम लोग रहे, वहाँ 10 दिन रहे हम लोग वेलोर में। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର 10 ଦିନ ଆମେ ସେ ବେଲୋରରେ ଆମେ ସମୟ ବିତାଇଲୁ। ये प्रभु का योजना था। ଆଉ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। उसी बीच वहीं आसपास में हम लोग कहीं घूमने के लिए भी गए। ଆଉ ସେ ଆଖପାଖରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ। उन्होंने मुझे कहा, ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, मुझे देख करके तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हूँ? ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ମୁଁ ବିମାର ଅଟେ। मैंने कहा नहीं, आप ମୁଁ बोलिए। ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନାହିଁ। लेकिन प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ହଉ। एक दिन प्रभु के दासी ने एक दिन फोन किया हमारे को, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦିନେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମକୁ କହିଲେ, रूबी पास्टर को बोलो हिजकिया के जैसे प्रार्थना करने के लिए। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ହିଜିକିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। अपने जीवन के लिए उन्हें प्रार्थना करे कि प्रभु उसका जीवन नहीं जाने दे, वापस दे। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନ ଯାଇ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସୁ। ସେ मैंने उनसे बोला कि आप हिजकिया के जैसा प्रार्थना कीजिए, देखिए प्रभु की दासी ने ऐसा ऐसा कहा है, प्रभु का क्या योजना हमें नहीं पता है। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିଜିକିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। उन्होंने मुझसे कहा ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ हिजकिया एक यहूदी था, मैं एक यहूदी नहीं हूँ। ଆଉ ସେ ହିଜିକିया ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଜିହୁଦୀ ନୁହେଁ। मैंने प्रभु के लिए क्या किया है? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି? मैं क्यों प्रभु से बोलूं? ଆଉ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବି? मैं प्रभु को इच्छा को हमारे जीवन में पूरी होने देना चाहता हूँ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ ପୁରା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। प्रभु जो चाहता है, जैसा चाहता है वैसा हमारे जीवन में करे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପୁରା କରନ୍ତୁ। एक पत्नी होने के नाते ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ହେବା ଭାବରେ मैंने कहा हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए आप प्रार्थना कीजिए अपने आप को। କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋ ପାଇଁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। उन्होंने कहा ଆଉ ସେ କହିଲେ सारी बातों में प्रभु को मैं महिमा देना चाहूंगी। ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବି। उन्होंने कहा कि जो भी प्रभु का योजना हमारे जीवन में है वही पूरा होने दीजिए। ଆଉ ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ହଉ। प्रभु की इच्छा के लिए मैं समर्पित हूँ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। एक जगह मीटिंग में भी उन्होंने कहा था, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ। उन्होंने डेट मांगा जनवरी का। ଆଉ ସେ ଜାନୁଆରୀ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। मुझसे कहा कि देखो उत्कल वाले ने टाइम दिया है, पता नहीं मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे नहीं पता है। ଆଉ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି, ମୁଁ ରହିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। मैंने उनसे कहा आप ऐसा क्यों बातें कर रहे हैं? ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଛନ୍ତି? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କଥା ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି। प्रभु की इच्छा है ये। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। तुम प्रार्थना करो प्रभु की इच्छा के लिए। ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ। 18 तारीख को ଆଉ 18 ତାରିଖ एक प्रभु की दासी का कॉल हमारे पास आता है। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସୀଙ୍କର ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। उन्होंने कहा ଆଉ ସେ କହିଲେ रूबी प्रभु पास्टर को बोलो उनको बहुत महिमा के साथ प्रभु लेना चाह रहा है। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କୁହ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। मैं रोना शुरू कर दी, ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो पाया। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। उन्होंने मेरे तरफ हंस के बोला ଆଉ ସେ ହସିକି କହିଲେ दुखी मत हो, दुखी मत हो, प्रभु को महिमा करना। ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା କରିବା। हमें नहीं पता था कि शायद ये प्रभु का योजना था। ଆଉ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। उसके बाद से उनको कुछ तकलीफ नहीं था। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ନଥିଲା। 2 दिन पहले 21 तारीख को ଆଉ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ 21 ତାରିଖ जस्ट खांसी कफ जैसा हुआ था, उनको हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କାଶର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି। हमारे जो लोकल पास्टर है उनको मैंने बुलाया। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲି। वो आ करके शाम को सुबह में लेके गए, डॉक्टर को दिखा के लेके आए। ଆଉ ସକାଳୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଆଣିଲି। डॉक्टर ने कहा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इनको 5 दिन का मैं मेडिसिन दे देता हूँ, ठीक हो जाएंगे। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହାକୁ 5 ଦିନ ମୁଁ ଔଷଧ ଦେଇଦେବି ତ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। 22 तारीख को ଆଉ 22 ତାରିଖ 1 बजे से
ଆଉ ରାତି ଗୋଟାଏ ସକାଳ ଗୋଟାଏ ସମୟରୁ उनको अचानक से बेचैनी जैसा लगा। ତାଙ୍କୁ ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ବେଚେନି ଯେମିତି ଲାଗିଲା 4 दिन से वो सो नहीं पा रहे थे। ଆଉ 4 ଦିନରୁ ସେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ। मैं 4 दिन तक ऐसा जग जग के थी पूरी रात। ଆଉ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। 4 दिन में वो पूरी रात बैठ करके प्रभु के समक्ष प्रार्थना किए। ଆଉ 4 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଦ୍ରା ରହି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲାଗିଥିଲି। 22 तारीख सुबह में ଆଉ 22 ତାରିଖ ସକାଳରେ जब उनको बेचैनी जैसा लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବେଚେନି ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ उनका मेरा बीपी जरा चेक करो। ଆଉ ମୋର ଟିକେ ବିପି ଟିକେ ଚେକ୍ କର। जब मैंने बीपी चेक किया ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିପି ଚେକ୍ କଲି 65 उनका बीपी आया। ଆଉ 65 ତାଙ୍କର ବିପି ଦେଖ मैं बहुत घबरा गई। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଘବରାଇ ଗଲି। मैं तुरंत उनको इलेक्ट्रल पाउडर में थोड़ा नमक ज़्यादा डाल करके उनको पिलाई। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପାଉଡରରେ ମୁଁ ଟିକେ ନମକ ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପିଇବାକୁ ଦେଲି। तुरंत फिर से मैंने बीपी चेक किया। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ବିପି ଚେକ୍ କଲି। मैंने देखा 74 बीपी हो गया। ତାପରେ ମୁଁ ବିପି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର 74 ହେଇଗଲା। उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। मैंने तुरंत पास्टर को कॉल किया। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଆମର ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ कଲି। तब तक 3 बज चुका था। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। तुरंत हम लोग लेकर के आए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତୁରନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ मैंने तुरंत ଆଡମିଟ୍ କଲୁ। रात 2:30 बजे से ही मैंने डॉक्टर को कांटेक्ट करना शुरू की। ଆଉ ପ୍ରାୟ ରାତି 2:30ଟା ସମୟରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। डॉक्टर ने कहा ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ आप इमीडिएट एडमिट कर दीजिए। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। वहाँ पर देखा गया ଆଉ ତ ସେଠାରେ ଦେଖାଗଲା उनका बीपी काफ़ी लो हो गया। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିପି ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲା। ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନର ଲେଭେଲ ବି ମୋତେ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। उन्होंने इशारा किया ଆଉ ସେ ମୋତେ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ଇଶାରା କରି କହିଲେ मेरे पास यहाँ बैठो। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ବସ। मैं समझ नहीं पा रही थी, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି लेकिन उनको सब कुछ पता था। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଥିଲା। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि कंट्रोल नहीं हो रहा, हार्ट बीट भी इनका काफ़ी बढ़ रहा है, ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି, इनको हार्ट सेंटर ले जाइए। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। उसी समय रात 3:30 बजे ଆଉ ସେଇ ସମୟ ରାତି 3:30 ବଜେ 3ଟା ସମୟରେ हम लोग वहाँ से 2 पास्टर जो थे हमारे साथ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ उनको तुरंत एसएमसी हार्ट सेंटर जो बड़ा हॉस्पिटल है रायपुर का, ଆଉ ଏସ୍ଏମ୍ସି ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଯେଉଁ ରାୟପୁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, वहाँ पर हमने उनको एडमिट किया। ଆଉ ସେଠାରେ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କଲୁ। तुरंत आईसीयू में उनका चिकित्सा शुरू हो गया। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଆଡମିଟ୍ କରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। चिकित्सा के समय में ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ डॉक्टर ने कहा ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ क्रिटिकल सिचुएशन है, ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି, कुछ भी हो सकता है। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। जूनियर डॉक्टर ने कहा, ଆଉ ଜୁନିୟର ଡକ୍ଟର କହିଲେ, सीनियर डॉक्टर का हमने वेट किया, ଆଉ ସେ ସିନିୟର ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲେ, उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଇଲେ। उन्होंने बीपी नॉर्मल करने के लिए कुछ कुछ मेडिसिन वगैरह चलाने लगे। ଆଉ ବିପିକୁ ତାଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, बीपी बढ़ नहीं पा रहा था, କିନ୍ତୁ ବିପି ବଢି ପାରୁନଥିଲା, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ କମିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନେବା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, और खांसी कफ भी था थोड़ा उनको। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାଶ ଆଉ କଫ ମଧ୍ୟ ଜମି ଯାଇଥିଲା। उन डॉक्टर ने कहा ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, हमें कुछ मेडिसिन लिख करके दिए। ଆଉ ସେ କିଛି ମେଡିସିନ ଲେଖିକି ଦେଲେ। देने के बाद उन्होंने कहा कि इनका ब्रोंकोस्कोपी एक प्रोसेस है, उसके द्वारा इनको कफ को निकालेंगे जिससे कि ये सांस सही से ले पाएंगे। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ମେଡିକାଲ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ସେଇ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ତାଙ୍କର କଫକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। प्रभु का धन्यवाद हो। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। मैंने इतना अद्भुत रीति से वहाँ पर प्रभु के प्रेजेंस को देख रही थी, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ଆଉ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା, कि प्रभु शायद अपनी योजना के तहत उनको लेंगे। ଆଉ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଉନଥିଲା କି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। मैंने ये विश्वास करते प्रभु की उपस्थिति है, मीन्स प्रभु उनको चंगाई देने जा रहे हैं अद्भुत ଆଉ रीति से। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। मैं रह कर कभी कभी रोना आता था मुझे। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ତ କାନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। मैं और मेरा बेटा रौन था मेरे साथ में, ଆଉ ମୋର ପୁଅ ରନକ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, उसने मुझे समझा रहा था, ଆଉ ସେ ମୋତେ ବୁଝାଉଥିଲେ, मम्मा प्रार्थना कीजिए। ଆଉ ମାମା ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। मुझे वो कुछ कुछ वचन से शेयर करने लगा। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ मैं ଲାଗୁଥିଲା। बहुत हैरान थी ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, क्योंकि मेरा बेटा उतना कभी बाइबल पढ़ता नहीं है, लेकिन आज वो ऐसे ऐसे वचन कैसे मुझसे बातें कर रहा ଆଉ है। ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି କି ମୋ ପୁଅ କେବେ ଏତେ ବାଇବେଲ ପଢ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟରୁ ମୋତେ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
इतनी गुड़ बातों को वो हमें वचन के द्वारा दिखा रहा था। ଆଉ ସେ ବହୁତ ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ मैं पूरा कॉन्फिडेंट थी ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ମୁଁ ଭରସାରେ ଥିଲି प्रभु अवश्य इनको चंगाई देने जा रहा ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ है। प्रभु मुर्दों को जिलाने वाला ଆଉ परमेश्वर ପ୍ରଭୁ है। ସେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ମାନେ ଜୀବିତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର प्रभु जिंदा खुदा है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ना जाने कितने लोगों को इनके प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उनको चंगाई दिया है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି अवश्य आज प्रभु इनको चंगाई देंगे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर राउंड में आता है 11 ଆଉ बजे, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ 11ଟା ପାଖାପାଖି ବେଳେ ଡକ୍ଟର ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ बोला कि ये किशोर डिगल का जो कोई अटेंडर है हमारे पास आइए। ଆଉ ଏ କିଶୋର ଡିଙ୍ଗାଲଙ୍କର ଯିଏ ବି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ पास्टर को मैंने बेटा को भेजा अंदर। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଠେଇଲି जब मैंने बेटा को भेजा तो उसने कहा कि नहीं कोई बड़े लोगों को भेजो अपने पास। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ପଠେଇଲି ସେ କହିଲେ ନା କିଛି ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ पास्टर जस्ट नीचे ही गए थे। ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ पास्टर को मैंने कॉल किया कि आप अर्जेंट आ जाइए ऊपर। ଆଉ ମୁଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଆନ୍ତୁ पास्टर ऊपर आ गए ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଉପରକୁ ଆସିଗଲେ और अंदर आईसीयू में गए ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଆଇସି ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ क्योंकि वहाँ किसी का अलाउ नहीं था जाने के लिए। କାରଣ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା जाने के बाद डॉक्टर उनसे बातें किए। ଆଉ ଯିବା ପରେ ଡକ୍ଟର ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ इनका सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, ଆଉ ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ कुछ भी हो सकता है 2 घंटे में। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଘଟିପାରେ डॉक्टर के बोलने के बावजूद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା मैं उस सामर्थ्य परमेश्वर को विश्वास कर रही थी, ଆଉ ମୁଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା जो କରୁଥିଲି असंभव को संभव करने वाला ଆଉ ଯେ परमेश्वर, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା सारे ପରମେଶ୍ୱର निराशा को आशा में बदलने ଆଉ वाला ସମସ୍ତ परमेश्वर। ନିରାଶାକୁ ଆଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ अब तक କରିବା हमने ପରମେଶ୍ୱର जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को देखा है। ଆଉ ଆମେ ମୋ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି आज भी प्रभु मुझे अवश्य आश्चर्य कर्मों को दिखाएगा। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ଦେଖେଇବେ मैं बहुत प्रभु के प्रेजेंस को वहाँ महसूस कर रही थी। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି उसके बाद पास्टर मुझे आकर के बताएं, ଆଉ ତାପରେ ପାଷ୍ଟର ଆସି ମୋତେ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ सिस्टर पास्टर का सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। ଆଉ ସେ କହିଲେ ସିଷ୍ଟର ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ मैंने समीर बाबू को तुरंत कॉल लगाई। ଆଉ ସେ ମୋତେ ସମୀର ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ बाबू आप अर्जेंट आ जाइए, भैया का सिचुएशन ठीक नहीं है। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଅ ଭାଇଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ मैंने आरबीएफ में दीप्ति दीदी को भी मैं कॉल करके बताई, ଆଉ ଆରବିଏଫ୍ରେ ଆମର ଦୀପ୍ତି ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି प्रार्थना कीजिए, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ उनका क्रिटिकल सिचुएशन है। ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି 1 घंटा वेट करने के बाद ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ डॉक्टर बोला कि अभी मैं उनको थोड़ा ऑपरेट करके वो प्रोसेस करने के लिए कोशिश करेंगे। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଅପରେସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ମୁଁ କରିବି प्रभु ने वो भी करने का मौका नहीं दिया। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ पास्टर ने कहा कि हम ये उनकी वाइफ और ये बेटा हम दोनों अंदर गए। ଆଉ ଆଉ ପାଷ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ हमने देखा उनको ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ अंतिम समय में, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ प्रभु उनको लेने वाले थे। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେବା ସମୟରେ हमारे आंखों के सामने प्रभु ने उनको लिया। ଆଉ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ प्रभु ने सेवा के लिए जो उनको भेजा था ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ अपने कार्य को पूरा करके वो ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା କରି ସେ प्रभु के विश्राम के लिए वो चले गए। ଓ ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେବା କରି ସେ ଆର ପାରିକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ फिर वो प्रभु की दासी का कॉल आता है हमारे पास, ତାପରେ କଲ୍ ଆସିଲା रूबी तुम दुखी मत हो। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ରବି ତୁମେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ प्रभु के दासी के समक्ष प्रभु उनके द्वारा प्रभु ने बताया, प्रभु के दास हमारे पास है, स्वर्ग आनंद मना रहा है। ଆଉ ସେ ଦାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛନ୍ତି पूरा स्वर्ग आनंद मना रहा है। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି ये मेरे प्रिय दास है, ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଅଟନ୍ତି मैं तुम लोग को कभी छोड़ूंगा नहीं, नहीं कभी त्यागूंगा। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କି କେବେ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ तुम दुखी मत हो, ଆଉ ତୁମେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ ନାହିଁ आंसू मत बहाओ। ଆଉ ତୁମେ କେବେ ଅଶ୍ରୁପାତ କର ନାହିଁ वो हमारे पास है। ଆଉ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି प्रभु को धन्यवाद हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ जो बीज वचन के द्वारा उन्होंने पूरे उड़ीसा में और जगह जगह जो बोया है,
ଆଉ जो प्रभु को वाक्य द्वारा सारा ओडिशा रे वो अन्य स्थान रे जो से बिहन बुणी अछंती ये उसका प्रतीक है जो इतने सारे लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। तार होची एहा होची गोटे तार गोटे गोटे फलस्वरूप जे ए स्थान रे एते लोक आज जमा आइछंती। मैं एक एक लोगों में वो प्रेम को देख रही हूँ। आ गोटे गोटे लोक को पाखरे मो से प्रभु को प्रेम को मो देखि पारु अछि। ये वचन है वही जो सच्चा वचन उन्होंने बोया है। आ एही सेही वाक्य जहाँ से सत्य वाक्य से बुणी थिले। कितने बार मुझे कॉल आता था कि कितनी तरह मते फोन आउस्तिला पास्टर को मत भेजो हिंदुओं के बीच में। आ से बारंबार से फोन आउस्तिला कि अन्य मानक निकट रे तांको पठाओ नाही। ये जो ये स्तुति और जो ये बोलते हैं मंत्र जो बोल रहे हैं, आ ये जो श्लोक आ जो मंत्र से कहउचंती बहुत सारे लोग नाराज हैं। आ बहुत लोक से नाराज अटंती। उनको मार भी सकते हैं। आ तांको मारी भी पारंती। मैंने कितने बार उनको समझाया। अब वो बहुत तरह तांको मु बुझैली आप प्लीज मत जाइए ऐसी जगह में जहाँ पर मतलब ऐसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। आउ ए प्रकार जगह को जाओ ना जोठी तुम मारिया पे चेष्टा करूछंती। आपको मंत्र मत बोलिए वहाँ पर। आउ से जगह जाय मंत्र कुह नहीं। उन्होंने मुझसे कहा आ से मते कहले जिस उद्देश्य से प्रभु ने मुझे भेजा है आ जे उद्देश्य से प्रभु मते पठैछंती प्रभु ही मुझे संभालेंगे आ प्रभु ही मते संभाली और जो बोलना है वो मैं बोलूंगा। आ जो मते कहबार अछि मु ता कहबी। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु के नाम रे गौरव हो। हर समय में उन्होंने पहला स्थान प्रभु को दिया। आ प्रत्येक समय रे से प्रभु को प्रथम स्थान देले। परिवार को भी उन्होंने बहुत प्यार से बहुत केयरिंग से उन्होंने रखा। आ परिवार के मते बहुत से जत्न सहकार से तार तत्व नेले। आप लोग के इतने प्रार्थना के द्वारा प्रभु मुझे हिम्मत दे रहे हैं। आ आपण मार्ग एते प्रार्थना दे प्रभु मते साहस दउछंती। लेकिन वो प्रेम वो केयरिंग नेचर को मैं रह के भूल नहीं पा रही हूँ। तांकर से प्रेम एवं तांकर केयरिंग नेचर केबे मु भूली पारिबी नै। लेकिन हम जानते हैं हमारा संसारिक स्वामी गया लेकिन हमारे स्वर्गीय स्वामी हमारे साथ में है। आ मुझे जाने जे मोर पार्थिव स्वामी से गले कि मोर स्वर्गीय स्वामी से मो संगे अछंती। हमारे बच्चों का संसारिक पिता प्रभु के पास है लेकिन स्वर्गीय पिता उनके साथ है। आ मोर पिला मानकर से पार्थिव तांकर पिता से नहांती किंतु स्वर्गीय पिता तांकर संगे अछंती और उनके संग संग है और रहेंगे। आ से सदा सर्वदा तांकर संगे रहिबे। आप लोग से हमारा निवेदन है अब अपन मान निकट मोर निवेदन आप लोग प्रार्थना में बने रहिए। अपन मान प्रार्थना रे लागी रहंतु। परिवार के लिए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम परिवार और हम पाई प्रार्थना करंतु। और भी वैसे दास प्रभु तैयार करे और यही प्रकार दास मान को प्रभु प्रस्तुत करंतु उड़ीसा के लिए आ ओडिशा पाई। और ये